Good morning, student. Now, in previous video, we already taken some example of the division of the polynomial. Okay. So, question number 1 and question number 2. Hope you already solved. In last video, I already gave you 8 questions for you people for the practice, and hope everyone solved in your fair notebook and extra notebook also. So here the next question number 3 is obtain all other zeros, means आपको सभी zeros निकालने। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यदि पावर 2 है मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 zeros रहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो 1 zero रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 zeros रहेंगे, और पावर 4 यदि है तो 4 zeros रहेंगे। ओके, हो सकता है कि 2 zeros सेम हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहां पे आपको 2 zeros दिए, मींस द पॉलिनोमियल इज गिवन 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, and 2 zeros are my root 5 by 3 and minus root 5 by 3. Okay, so here p of x means the given polynomial, means solution यहां पे लेंगे हम लोग, solution got it. So here p of x is given, क्या दिया है p of x में 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. अब ये जो zeros दिए हैं, so this is the value of alpha. Alpha is equals to root 5 by 3 and beta is equals to minus root 5 by 3. इतना समझता है ना? Because these are the two roots are given, it means that the first root is considered as alpha and the second root is considered as a beta. Got it? You know that the polynomial p of x can be written as p of x can be called g of x. p of x बोलने की जगह p of x already लिया है, g of x means divisor. So x minus alpha and x minus beta, these are the factors of g of x. मान के चलेंगे. Got it? या फिर ऐसा भी मान के चलते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो एक अल्फा माइनस रूट 5 by 3 होगा, और यहाँ पे बीटा प्लस रूट 5 by 3 होगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इन दिस में सो x माइनस रूट 5 by 3 एंड हियर x minus of minus root 5 by 3. So here we will multiply, that is x minus root 5 by 3 and x plus root 5 by 3. Got it? Then what we will get here? a minus b into a plus b. दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? a minus b, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? a plus b. तो a minus b into a plus b क्या मिलेगा? a square minus b square, root 5 by 3 का square. So what we will get? x square minus 5 by 3. अब ये जो x square minus 5 by 3 है, ये हमने zeros से निकाला है। अब zeros से निकाला, इसका मतलब value of polynomial is 0. When we will put the value of x is equals to root 5 by 3, we will get p of root 5 by 3 is equals to 0. Means आपको क्या मिलेगा? p of root 5 by 3 is equals to क्या मिलता है? 0 मिलता है। Why it is 0? Because this is the 0 of the polynomial. In 9th standard, you already learned the remainder theorem and factor theorem also. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? If the value of polynomial is 0, it means that your remainder is 0, and previous video में हमने देखा as the remainder is 0, it means that divisor is the factor of dividend. So naturally ये दोनों zeros है polynomial के, इसका मतलब ये हो गया कि this is the factor of the given polynomial. Okay, so here I write here, therefore we can write here x square minus 5 by 3 is factor of p of x. अब ये फैक्टर है ना? ये यदि फैक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं p of x को इससे डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए. So we will divide, therefore divide p of x by x square minus 5 by 3. x square minus 5 by 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल डिवीजन इज देयर,
3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, and it is divided by x square minus 5 by 3. As you know that whenever we will take the division, we will consider this term and this term only. So 3x to the power 4 चाहिए और यहाँ पे x square है. x square को किससे मल्टीप्लाई किया तो x to the power 4 आया, x square से मल्टीप्लाई करेंगे तो x square into x square become x to the power 4. मगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 3 भी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x square से. तो किससे मल्टीप्लाई किया, x square minus 5 by 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x square से. Then what we will get here, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3x square. So 3x square into x square, 3x to the power 4. 3x square into minus 5 by 3, 3 get cancel, we will get here minus 5x square मिलेगा. तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 3x to the power 4 minus 5x square. तो x square का टर्म x square के नीचे minus 5x square. Got it? साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल, 3x क्यूब 6x क्यूब बचा, हियर प्लस है और ये माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर. गॉट इट? माइनस 10x और माइनस 5. अब मुझे कौन सा टर्म चाहिए वो देखेंगे. अब मुझे चाहिए यहाँ पे 6x क्यूब, मेरे पास है x स्क्वायर, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6x से. बराबर है क्या, चेक कर लेते हैं. 6 into 1 6, x into x square x cube, करेक्ट है. तो यहाँ पे x square minus 5 by 3 is multiplied by 6x. So here we get here 6x square minus 6, 2 3 is 6, 3 2 is 6, तो 2 बचेगा, 2 5 is 10, तो minus 10x हो गया. आप एक बार चेक कर लेना है मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है कि नहीं, हो सकता है मेरे हाथ से भी गलती हो. So here 6x cube, x square into x, yes x cube चाहिए, देखो गलती हुई ना, 6x cube. 10x यहाँ पे लेना पड़ेगा, माइनस 10x, यहाँ पे डिवीजन का साइन माइनस और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. Then what we will get here, 3x square बचेगा, here minus 5 बचा है. Got it? 3x square minus 5 बचेगा. अब मुझे चाहिए यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल x स्क्वायर माइनस 5 by 3, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 3 into x स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 3 get cancel, only 5 is left, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज करेंगे, माइनस एंड इट बिकम प्लस. गॉट इट? देन इट विल बी कैंसल, इट इज अगेन कैंसल, रिमाइंडर इज 0. गॉट इट? तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एज द रिमाइंडर इज 0, तो ये तो फैक्टर ही हो गया ना. देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, डिवीजन, क्या बोलेंगे, दिस डिवाइजर इज वन फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज व्हाट, दिस क्वोशिएंट. तो क्वोशिएंट आपको मिला सेकंड फैक्टर. देयरफॉर क्वोशिएंट इज व्हाट, 3x square plus 6x plus 3. मिल गया? Now we will take the factor of this one. Means आपके पास दो फैक्टर आए. कौन से दो फैक्टर आए? चेक करो. पहला है आपके पास कौन सा, एक बार चेक कर लेंगे. So 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 is equals to, पहला फैक्टर हो गया आपका ये x स्क्वायर माइनस 5 by 3 और सेकंड फैक्टर हो गया कौन सा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. अब इसके तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं आपको दूसरे के फैक्टर करने पड़ेंगे. ये जो दिख रहा है आपको ये, तो इसको कर लेते हैं, यहां से 3 कॉमन ले लिया हमने. व्हाट वी विल गेट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ वी विल टेक हियर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे. सो 1 के फैक्टर हो गए आपके 1 और 1. सो व्हाट वी विल गेट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला. x कॉमन ले लिया,
बचेगा x plus 1, here plus 1 common, x plus 1 is left, so we will get here 3 x plus 1 and x plus 1. Got it? So finally what we will get? X square plus minus 5 by 3. This is of your one factor. Another factor is 3. Another factor is x plus 1, and the next factor is x plus 1 also. अब x plus 1 फैक्टर है, इसका मतलब x plus 1 is equals to क्या होना चाहिए 0. So x is equals to what we will get minus 1. Here also x plus 1 is equals to 0. It means x is equals to minus 1. So other zeros are therefore all obtain all zeros. Therefore zeros of p of x are कौन से रहेंगे? रूट 5 by 3 माइनस रूट 5 by 3. ओके, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा है आपका -1, तो ये भी -1 ही है, तो एक ही लिखा तो भी चलेगा. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. Start. Now the next question number 4. ये फोर्थ क्वेश्चन है. On dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, means ये क्या है? आपका डिवाइजर है. The quotient and the remainders are x minus 2 and minus 2x plus 4. So first of all we will write all these things. So this p of x is equals to polynomial x cube minus 3x square plus x plus 2. Okay, g of x which is not given, means यहाँ पे डिवाइजर नहीं दिया है. quotient means q of x ले लेते हैं हम लोग. quotient that is x minus 2 is quotient, and the remainder means r of x ले लेते हैं. r of x हो गया minus 2x plus 4. What do you know about the relation between the p of x, g of x, q of x and r of x? You know that dividend is equals to, dividend means p of x is equals to divisor, that is g of x into quotient plus remainder r of x. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत बार यहाँ पे पढ़ा हुआ है. क्या? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. ये लर्न होना चाहिए. ये है डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Now we will put all the values here. Okay, or we can say that which values are given here. p of x हमारे पास अवेलेबल है, g of x अवेलेबल नहीं है, q of x अवेलेबल है, r of x ये भी अवेलेबल है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले r of x को ट्रांसफर करते हैं. सो p of x या r of x मींस रिमाइंडर को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस r of x हो गया. नहीं समझे? इज इक्वल्स टू g of x into q of x. समझ में आ गया? अब किसको ट्रांसफर करेंगे? मुझे g of x चाहिए तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो p of x minus r of x divided by q of x is equals to g of x. तो g of x का वैल्यू मिल गया मुझे. क्या मिलेगा g of x का वैल्यू? Therefore g of x is equals to क्या आया? p of x minus r of x divided by q of x, means g of x divisor is equals to dividend minus remainder upon quotient. Now we will put all the value. So p of x का वैल्यू दिया है आपके पास x cube minus 3x square plus x plus 2 minus of, ब्रैकेट कर लेंगे क्योंकि टर्म्स ज्यादा है इसलिए. r of x का वैल्यू है minus 2x plus 4, ये भी हो गया.
और डिविडेंड है आपका, सॉरी कोशेंट है आपका x माइनस 2, यहाँ पे लिख लिया। व्हाट वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 4, गॉट इट, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो हियर व्हाट वी विल गेट, x क्यूब का एक ही टर्म है एज इट इज, माइनस 3x स्क्वायर हियर प्लस x और प्लस 2x बन गया माइनस प्लस 3x और माइनस 4 एंड प्लस 2 बिकम माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको g ऑफ x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि g ऑफ x आपको तभी मिलेगा जब आप x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से। तो सिंपल डिवीजन इज देयर, आपको पता है, आप लोग कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, सिंपल डिवीजन करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड हियर x माइनस 2, गॉट इट। मुझे चाहिए x क्यूब, मेरे पास है x, तो यहां पे क्या करेंगे, x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर। अंडरस्टूड, गलतियां हो सकती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला मुझे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, दिस इज माइनस एंड दिस बिकम प्लस, x क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस और प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस 3 प्लस 2 बिकम माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, गॉट इट। अब मुझे चाहिए माइनस x स्क्वायर, मेरे पास x है तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x माइनस 2 इंटू माइनस x, सो माइनस x इंटू प्लस x माइनस x स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस 2x माइनस माइनस प्लस। अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, आपको ही पता है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। सो हियर वी राइट माइनस x स्क्वायर, गॉट इट, और प्लस 2x, साइन चेंज करेंगे, इट बिकम प्लस, इट बिकम माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x बिकम x और यहां पे माइनस 2। अंडरस्टूड, समझ गए। तो क्या मिल गया आपको, यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मान के चलो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्या होगा, 2 1 जा 2, आता है कि नहीं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 से, क्योंकि x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x x और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो मिल गया मुझे x माइनस 2, हियर minus and it become plus, so this will be cancelled, this is again cancelled, your remainder is what, 0, got it। Then therefore g of x is equals to, g of x is equals to, आपका ये पूरा डिवीजन क्या आ गया, x square minus x plus 1, so this is the value of g of x। Start. Now, students, this is for you people. Only 3 questions I gave you for homework. First question is, obtain all other zeros of the polynomial 2x to the power 4 plus 3 plus x cube minus 14x square minus 19x minus 6 if two zeros are minus 2 and minus 1. तो जैसा मेथड हमने किया था वैसे ही करना है आपको। दिस इज ऑफ योर अल्फा एंड दिस इज ऑफ योर बीटा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको और एक क्वाड्रेटिक मिलेगा कोशेंट में। ओके, सिमिलरली सेम क्वेश्चन इज देयर, यहाँ पे √3 दिया है और -√3 दिया है, तो
तो आपके दो फैक्टर्स मिलेंगे, x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली दिस क्वेश्चन आल्सो, सो दिस इज सॉल्व्ड बाय यू पीपल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन और ये तीनों, तीसरा भी जो क्वेश्चन है वो आपके एक्स्ट्रा बुक में ही सॉल्व करेंगे, तीनों के तीनों।